Good afternoon, one and all. Today is 16th March 2021 and we'll be taking arrays. What do you mean by array and why basically we use array? Let's see. What is an array? An array is a fixed size sequential collection of elements of same data types that share a common name. एक common name, collection of data, collection of similar type of elements. जब हम एक टाइप के एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और सबका नाम एक ही होता है, उन सभी को एक ही नाम से जब बुलाते हैं, दैट इज व्हाट इज एन एरे. नाउ हाउ कैन वी कॉल सो मेनी elements by the same name? This is how we study through the concept of an array. It is simply a group of data types. एक डेटा टाइप जो रहता है उसका कलेक्शन है ये. An array is a derived data type. Why derived data type? Because जो basic data types हैं जैसे int है, float है, char है, double int, double float है, double long int, short int. Okay, we have different data types. When we collect all these data types together to form a group of data having same data types. So from these basic data types, a new data type has been derived, that is called as an array. Now an array is used to represent a list of numbers or a list of names. मतलब अब किस किस को हम लोग array से represent करेंगे? List of numbers या list of name को. Now suppose if there is a problem कि question arise होता है, suppose I would like to store marks of a student. एक student के एक mark को हमको store करना है, जो भी उसको marks मिले हुए हैं, एक particular subject के एक student के marks को store करना है. तो what we'll do? We'll declare one integer type variable to store the मार्क्स. एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मार्क्स को स्टोर करने के लिए. ठीक है. इफ आई नीड टू स्टोर 2 मार्क्स तो आई विल डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स. अगर मुझे 3 मार्क्स स्टोर करना है तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. 4 तो 4 वेरिएबल. 40 मार्क्स स्टोर करना है तो 40 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा. 400 मार्क्स को स्टोर करना है तो 400 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा. बिकॉज हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड? द डेटा विल अल्टीमेटली बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल. तो आई नीड टू create 40, 400, 4000, 4 lakh variables to store 4 lakh data. अगर मुझे 4 lakh data store करना है तो 4 lakh variables create करने पड़ेंगे. That means so many memory locations I need to create using different names because variable name should be unique. Variable का नाम, identifier का नाम जो है वो unique होना चाहिए. तो अब मैं क्या करूंगी? इतने सारे variables कैसे बनाऊंगी? Then I need to remember the name of those variables also. So the solution to that problem is an array. Why an array? Because array is a fixed size sequential collection of elements of same data type. Same data type. जैसे हमको पूरे 4 लाख इंटीजर डेटा स्टोर करने हैं, मतलब उनका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर. तो सभी जो है वो एक ही कॉमन नाम से मैं उसको कॉल करूंगी, दैट इज मार्क्स. तो सारे वेरिएबल्स किससे कॉल हो जाएंगे? सिर्फ मार्क्स वेरिएबल, मार्क्स से. ओके. नाउ सी हियर. For example, suppose I would like to store list of employees in an organization. एक organization में employees की list को store करना है. Test score of a class of students, list of customers and their telephone numbers, list of students in the college. For example, to represent 100 students in college, we can write like this: student within square bracket 100. Now this is the way you use an array. एरे को यूज करने का तरीका ऐसा है. स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर. तो व्हेन यू सी लाइक दिस, इट मींस वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द डेटा, दैट इज 100 स्टूडेंट डेटा in a single variable called as student. Why? Because student is an array. So here student is an array name and 100 is the index or the subscript. ये 100 को index बोलेंगे या subscript बोलेंगे और student जो है वो student name कहलाएगा. Okay, so that means if I have a problem of storing similar type of data, okay, instead of creating so many variables, we'll create one single variable called an array to store similar type of data. Now let's see how do you store it and what are the different data types. There is one different types of array: one dimensional array, two dimensional array and multi-dimensional array. In your syllabus we have one and two dimensional array. Let's begin with the one-dimensional array. A variable which represents the list of items using only one index subscript.
अगर एक ही इंडेक्स सबस्क्रिप्ट है तो वो वन डायमेंशनल कहलाएगा. इट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल एरे. सपोज इफ द वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स द लिस्ट ऑफ आइटम्स यूजिंग ओनली वन इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट, एक ही इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो then we call it as one dimensional array. For example, if we want to represent a set of 5 numbers, say 35, 40, 20, 57, 19, ये क्या हो गया, इंटीजर नंबर्स हो गए. इन इंटीजर नंबर्स को हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, एक ही वेरिएबल में. क्यों? क्योंकि हमको इन डिफरेंट नंबर्स को एक ही नाम से कॉल करना है. तो अब एक नाम से कॉल करने के लिए अगर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें नंबर स्टोर कर दिया तो फिर वो ओवरराइट हो जाएगा. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टोर इट इन द यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एन एरे. एरे में क्या होता है, वो ओवरराइट नहीं होता, बिकॉज एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन है. तो ये जो है एक ही डेटा टाइप है सबका, इंटीजर. तो इंटीजर वेरिएबल का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया नंबर. अब इसमें हमने कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं, 5. 1 2 3 4 5. तो 5 इंटीजर वेरिएबल्स कैन बी स्टोर. So how do you declare a variable? We declare an array which is a variable. What is an array? Array is a variable which allows us to store similar type of data which is more than one. एक से ज्यादा similar type of data store करना allow करता है एक array का नाम. तो array कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, अगर वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट नंबर सेमीकोलन. ये सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, इंट नंबर सेमीकोलन. दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो इंट नंबर नो कॉमा नो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा NUM कॉमा टी कॉमा क्यू. ये हमारे वेरिएबल्स हो गए. तो हम कोई भी रैंडमली नाम दे देते हैं. बट अब मैं कैसे रिमेम्बर करूंगी कि किस वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सो मेनी वेरिएबल्स विल यूज द कंसेप्ट ऑफ एन एरे. तो एरे में कैसे कंसेप्ट है कि एरे में एरे नेम होता है. कैसा डिक्लेरेशन रहता है एरे का, डेटा टाइप एरे नेम within square bracket some number, that is called as subscript. Data type array name subscript semicolon. Data type array name subscript within square bracket and semicolon. This is called as declaration of an array. एरे का डिक्लेरेशन है. तो हमने क्या किया, एक नंबर एरे क्रिएट किया जिसमें 5 इंटीजर डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं. तो नंबर के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, नंबर के अंदर 5 इंटीजर डेटा जो है वो स्टोर कर रहे हैं. सो नंबर इज एन एरे which allows us to store 5 इंटीजर एलिमेंट्स. सो ये स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिखा है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट. ये सबस्क्रिप्ट फिक्स नंबर कुछ ना कुछ होना चाहिए, 5 10 15. तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे. ओके, नाउ एंड द कंप्यूटर स्टोर दीज नंबर्स एज शोन बिलो. अगर मैंने इसको नंबर ऑफ 5 ऐसे लिखा, suppose if I write in number 5, that is declaration of an integer array. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि number of 0, number of 1, number of 2, number of 3 and number of 4, because array always begins with 0 by default. by default array कहाँ से शुरू होता है, 0 से. टोटल 5 है तो 0 1 2 3 4. तो ये टोटल के 5 array elements जो है इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं. Say for example, the values can be assigned to an array as follows. Number of 0 35 स्टोर किया, number of 1 40, number of 2 20, number of 3 57, number of 4 19. तो 5 इंटीजर वैल्यूज सिंगल वेरिएबल नंबर में स्टोर की. हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, ओनली यूजिंग द सबस्क्रिप्ट. इसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स. इसको रीड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ 0, 0th एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4th एलिमेंट, 0. तो 0 से लेकर 4 मतलब टोटल 5 इंटीजर नंबर्स हमने स्टोर किए हैं. ये 5 रेफरेंस के लिए कैसे रेफर करते हैं, नंबर ऑफ 0. तो अगर हमको इसको अंदर इनिशियलाइजेशन करना है, वैल्यू असाइन करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 35, नंबर ऑफ 1 इक्वल टू 40, नंबर ऑफ 2 इक्वल टू 20, नंबर ऑफ 3 इक्वल टू 57 एंड नंबर ऑफ 4 इक्वल टू 19. ओके, द जनरल फॉर्म ऑफ एन एरे डिक्लेरेशन इज, कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप एरे नेम एंड द साइज विच इज अ सबस्क्रिप्ट इंडेक्स. कैसे लिखते हैं, डेटा टाइप इन फ्लोट कैर, एरे नेम एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज, दैट इज इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट. सो हियर द टाइप specifies the data type of the elements contained in the array such as in float char. ये टाइप में क्या आएगा,
टाइप पे आएगा या तो इंट या तो फ्लोट और या तो कैर। साइज में क्या आएगा, साइज इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द एरे। यहाँ पर फिक्स नंबर आएगा, साइज में हमेशा कोई एक नंबर आता है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एन एरे एंड द साइज शुड बी आइदर अ न्यूमेरिक कांस्टेंट और अ सिंबॉलिक कांस्टेंट। या तो न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा या सिंबॉलिक कांस्टेंट होगा। सिंबॉलिक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, तो मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर फिक्स नंबर दिखते हैं। Say for example, data type is int, group is the array name and 10। तो ये क्या हुआ, हमने एक इंटीजर एरे क्रिएट किया जिसका नाम ग्रुप है और इसमें कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 10। तो बाय डिफॉल्ट ये ग्रुप कहाँ से शुरू होगा, ग्रुप ऑफ 0, एंड कहाँ पर हो, ग्रुप ऑफ 9। So here int is a type, group is a variable name and 10 is the size of an array and the subscript index is start from 0 to 9। 0 से शुरू हो रहा है और 9 पे खत्म हो रहा है। Okay, an array can be stored in the following stages: at compile time, at run time। Okay, array के अंदर दो stages पे डेटा स्टोर होता है, कंपाइलेशन के टाइम पे भी या फिर रन टाइम पे भी। Okay, at the time of compilation how the value is initialized, let's see that। ये प्रोसेस है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल टाइम में हो जाता है, दैट इज एट द टाइम ऑफ converting higher level language to lower level language, that is compilation। and running is the program which is executed will be the program which will be executed। exe file जो है उसको जब execute करते हैं that is called as run। so in compile time initialization the array is initialized when they are declared। compile time में जब array declare करता है तभी हम initialization कर देते हैं। so the general form of initialization of an array is type array name size equal to list of values। तो directly at that time we can assign the value at the time of declaring a variable। तो क्या लिखना है यहाँ पर, डेटा टाइप लिखना है या एरे का नाम लिखना है या स्क्वायर ब्रैकेट में साइज लिखना है, इक्वल टू लिस्ट लिखना है। तो जितना साइज होगा वो 0 से लेकर वो नंबर -1 तक चलेगा। द लिस्ट ऑफ वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमास के सेपरेट होती है कॉमास से। जैसे देखो इंट नंबर 3, इंट की डेटा टाइप हो गया, नंबर हो गया हमारा, एरे नेम हो गया, 3 इज सबस्क्रिप्ट दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एन एरे इज 3। सो इट इज इंटीजर एरे 4 5 9 कितना दिया है 3। so this is number of 0, number of 1 and number of 2। so here array of size 3 and will assign 4 to the first element number of 0, 5 is assigned with the second element number of 1 and 9 is assigned with the third element number of 2। okay, मतलब नंबर ऑफ 0 में पहली वैल्यू, नंबर ऑफ 1 में दूसरी वैल्यू और नंबर ऑफ 3 में 0 1 2। नंबर ऑफ 0 में 4, नंबर ऑफ 1 में 5 एंड नंबर ऑफ 2 में 9 वैल्यू स्टोर होगी। If number of values in the list is less than the number of the elements, then only that element will be initialized। The remaining elements will be set to 0 automatically। सिर्फ एक ही नंबर इनिशियलाइजेशन करना है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट को आप एक्सेस करोगे और उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दोगे। और अगर आप डायरेक्टली इस तरह से लिखते हो तो पूरे के पूरे एरे को इनिशियलाइजेशन करना जरूरी हो जाता है। Now see the example। int number square bracket equal to 1 2 3 4। This is dynamic initialization of an array। Dynamic initialization means at the time of declaring a variable हमने array का size specify नहीं किया, तो जितने elements है उतना size अपने आप ले लेगा। तो 4 element है, 4 element का ही size ले लेगा। तो एक element को कितना size लग रहा है, integer data है, integer occupies 2 bytes। 2 byte 2 byte 2 byte 2 byte 2 2 2 2 2 कितनी बार, 4 बार, 2 into 4 that is 8 bytes will be reserved for the number variable। Similarly name variable, name में एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट है, JOHN, 2 कैरेक्टर 2 बाइट, 3 बाइट 4 बाइट। 4 बाइट्स के लिए नेम जो है वो वेरिएबल एरे वेरिएबल क्रिएट करेंगे कैरेक्टर नेम, और एक जो है वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो टोटल हमने कितने ऑक्यूपाई किए, 4 बाइट्स। /0 भी अगर काउंट करते हैं तो 5 हो जाएगा। So the character array can also be initialized as follows: char name of 0 equal to John। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। Only in case of the character initialization of a variable। Now let's see two-dimensional array, a variable which represents the list of items using two
इंडेक्स सब्सक्रिप्ट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल. दो इंडेक्स सब्सक्रिप्ट है टेबल में, 2 3, मतलब रो कॉलम, कितनी रोज 2, कॉलम कितने हो गए 3. सो द टू डायमेंशनल एरे द डेटा इज स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम फॉर्मेट. सेम वैसी डिक्लेरेशन है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड फर्स्ट डायमेंशनल एंड द सेकंड डायमेंशनल. ओके. So the general form of two-dimensional array is declared as type, that is data type, variable name and square bracket row name, row size and the column size. Here the type signifies the data may be elements containing in the array, such as int, float or char. So यहाँ type कौन-कौन से हो सकते हैं? We can take data type as either int, float or char. These are some of the basic data types. The size should be either a numeric constant or a symbolic constant. Size क्या होना चाहिए? या तो न्यूमेरिक कांस्टेंट होना चाहिए या फिर सिंबॉलिक कांस्टेंट होना चाहिए. जनरल फॉर्म ऑफ इनिशियलाइजिंग टू डायमेंशनल array is type, array name, row size, column size equal to the list of values. जैसे अगर मैंने ये लिया int table 2 3 और ये एलिमेंट लिया 2 into 3, दैट इज टोटल 6 एलिमेंट्स चाहिए होंगे, 6 आ गए. ओके. अब पहला एलिमेंट क्या होगा? 0 0 0 0 1 and 0 2, 0th row 0 0 0 1 0 2. फिर next row will be 1 1 0 1 1 1 2. ओके. इसको मैं आपको बताऊंगी कल प्रोग्रामिंग लेके. तो ये हर एक एलिमेंट एरे का इस तरह से रिप्रेजेंट होगा टू डायमेंशनल मैट्रिक्स के फॉर्म में. Here the elements of the first row initializes to 0 and the elements of the second row is initialized to 1. So the above statement can be written as 2 3 is equal to 0 0 0, 3 बार 0 हो गया और 3 बार 1 हो गया. So two dimensional array, the whole two dimensional array, the row size can be omitted. In a two dimensional array, row size can be omitted. So the general form of two dimensional array declaration is, we have already seen this. Okay, see how we have taken 2 into 3, that is 6, 1 2 3 4 5 6. तो ये जो 2 है ये रो हुआ, ये कॉलम हुआ, तो कितनी रो ही? 0 और 1. ये 0 की रो हुई और ये 1 की. एक रो में कितने कॉलम है? 3, 0 1 2. नेक्स्ट इज 0 1 2. See how it is being created. It is written in the form of a matrix. 0 0 0 1 0 2, then 1 0 1 1 and 1 2. This is the representation of the two dimensional array in the form of a matrix. Matrix in the form में एक रो और एक कॉलम के लिए वैल्यू लिखते हैं. Okay. Now a variable which represents the list of items using more than 2 index is called as a multidimensional array. And here this is how we declare a multidimensional array, where S is the size and some examples are int, survey, 3 5 6, float, table. देखो ये 3 डायमेंशनल एरे हो गया, ये 4 डायमेंशनल एरे हो गया. तो 3 के ऊपर जो होता है उसको मल्टी डायमेंशनल एरे कहेंगे. ठीक है. If you are not specifying the size of an array, if it is dynamic, then that dynamic array is called as a pointer for accessing arrays. Passing arrays is a function parameter that we will see in the later section. Now I'll just show you the. Okay, now see, this is the program for an array, one dimensional array. Comment entry, if we begin with the hash include statement, main begins. This is called as declaration of an array. This statement is called as an array declaration. इस statement को क्या बोलते हैं? Array declaration. Okay. And marks is called as the array name. ये क्या है? Array name. तो array declaration कैसे होता है? Array declaration में array का नाम आता है. मतलब array को हम declare कर रहे हैं, memory allocate कर रहे हैं. Basically array मतलब array declaration मतलब variable declaration ही होता है. But array में एक से ज़्यादा similar type of data हम स्टोर कर सकते हैं. इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप. सेम डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप? इंट. कितने वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर दिए? मार्क्स नाम के हमने 5 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए. मतलब 5 डिफरेंट डेटा हम मार्क्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं. अगर मैं इसको ऐसा क्रिएट करती हूँ, सो इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल वेरिएबल कॉल्ड एज मार्क्स एंड ओनली वन इंटीजर वैल्यू कैन बी स्टोर्ड. अगर मैं दूसरी इंटीजर वैल्यू इसके अंदर स्टोर करती हूँ तो क्या होगा? पहली वाली ओवरराइट हो जाएगी. तो हमको
5 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करना है। किस वेरिएबल में? मार्क्स वेरिएबल में। तो एक ही वेरिएबल में 5 वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे? उसको हम एरे बनाएंगे। एरे बनाने के लिए सिंटैक्स है डेटा टाइप एरे नेम एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स। इसका साइज स्पेसिफाई करेंगे। तो हमने एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स क्रिएट किया। So this statement is called as declaration of an array, variable declaration of an array, integer array, data type लिखना है, वेरिएबल नेम लिखना है, एरे का नाम लिखना है और यहाँ सबस्क्रिप्ट लिखना है कि कितना उसका साइज है। 5 साइज है, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट में क्या वैल्यू है अभी? 5, दैट इज साइज ऑफ एन एरे। मैक्सिमम साइज ऑफ एन एरे इज 5। तो दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। अब 5 मार्क्स हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो सबस्क्रिप्ट है ये कहाँ से शुरू होगा? बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होगा। मतलब 5 अलग अलग वैल्यू, 0, मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4। ये 5 वैल्यूज हो गए 0 से लेकर 4 तक। इसमें 5 इंटीजर वैल्यूज हमने इन 5 वेरिएबल्स में स्टोर कर दिए। ये पांचों वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर डेटा टाइप। इस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल, सॉरी इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे एलिमेंट। एरे को इनिशियलाइज किया है, एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को हमने इनिशियलाइज किया है। दिस स्टेटमेंट, these 5 statements are called as initialization of an array element। एरे एलिमेंट का इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। मार्क्स ऑफ 0 में 23 वैल्यू स्टोर की, मार्क्स ऑफ 1 में 34 स्टोर किया, मार्क्स ऑफ 2 में 32 किया, मार्क्स ऑफ 3 में 28 किया, मार्क्स ऑफ 4 में 30 किया। अब हम एक एक वैल्यू सबका प्रिंटिंग कर रहे हैं। मार्क्स ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट की, ये मैसेज आएगा मार्क्स ऑफ 0 करके लिखा हुआ, और इसके अंदर ये % डी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मार्क्स 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली मार्क्स 1 2 3 4 ये हमने वैल्यूज को प्रिंट किया। इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे एंड आउटपुट देखेंगे। सीधा आउटपुट इज दिस। सो हमारे पास में आउटपुट क्या आया? मार्क्स ऑफ 0 में 23 वैल्यू आ गई, मार्क्स ऑफ 1 में 34, मार्क्स ऑफ 2 में 32, मार्क्स ऑफ 3 में 28 एंड मार्क्स ऑफ 4 में 30 वैल्यू आ गई। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर एन एरे। नाउ दिस इज द सेकेंड वे ऑफ इनिशियलाइजिंग एन एरे। एरे को कैसे इनिशियलाइज किया? दूसरे तरीके से हमने लिखा इंट मार्क्स ऑफ 5। तो 5 वैल्यूज को, इंटीजर वैल्यूज को हमने डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया। मतलब ये वाले जो फर्स्ट 32 है दैट इज मार्क्स ऑफ 0, 34 क्या है? मार्क्स ऑफ 1, 23 क्या है? मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3 एंड मार्क्स ऑफ 4। तो ये पूरा का पूरा एरे इनिशियलाइजेशन कर दिया एक साथ एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे। और उसको प्रिंटिंग कैसे किया? डायरेक्टली हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मार्क्स 0 1 2 3 4 इस तरह से हमने इसको प्रिंट कर दिया। Now if I run the program, you see the output is marks of 0 32, ये marks of 0 की वैल्यू है, marks of 1 is 34, marks of 2 is 23 and marks of 3 is 45 and marks of 4 is 28. So these are the values which are being printed. Okay, now we'll see if I would like to reduce these 5 statements by a single statement. So I should use the concept of looping. Now let's see the concept of, see this is the program to convert the marks of 0 1 2 3। वो जो 5 स्टेटमेंट थी उसको हमने किस में रिप्लेस कर दिया? We have replaced it using the for loop. So this for loop will be executed how many times? 5 times. It begins with 0 and will complete I to less than 5. I less than 5 means I less than 5 means 4. 0 1 2 3 4 5 बार लूप चलेगा 4 तक। तो सबसे पहले I की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी। यहाँ पर चेक होगा 0 is less than 5, yes, so it will enter within the printf statement। so marks of 0 के लिए, marks of 0 के लिए प्रिंटिंग होगा 0 plus 1 that is 1, 1 is less than 5, yes the condition is true, it will enter into the loop and marks of 1 will be printed। 1 plus 1 that is 2, 2 less than 5, yes marks of 2 will be printed। 2 plus 1 3, 3 less than 5, yes marks of 3 will be printed। then 3 plus 1 4, 4 less than 5, yes the marks of 4 will be printed। 4 plus 1 5, 5 less than 5, the condition becomes false। if the condition becomes false it will not enter within the loop and will terminate। so this statement will be executed 5 times from 0 to 4 and will print all the marks। so we have reduced those 5 statements using this single statement by applying the for loop over here। This is the output you will get
the output as marks of I. Instead of I should write here the variable percentage and print the value. So marks of 0, marks of 1, marks of 2, marks of 3 will be printed. So here should write %t